ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেল স্পিন নিউজ বাংলা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল বাটনটি টাচ করুন। নমস্কার, আমি সমীরণ, স্পিড নিউজ বাংলা। আর কয়েক মাস পরেই বিধানসভার নির্বাচন। বাংলায় জমে উঠেছে রাজনীতির পারদ। আজ রামনগরে বিশাল সমাবেশ করল বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। যোগদান সমাবেশ নামে কানায় কানায় পূর্ণ রামনগরের মাঠে বক্তব্য উপস্থাপন করলেন বিজেপি নেতৃত্ববৃন্দ। সিপিএম জেলা নেতা শ্যামল মাইতি সহ পূর্ব মেদিনীপুরের অনেক বামপন্থী নেতা আজ বিজেপিতে যোগ দিলেন। আসুন দেখে নিই। প্রতি কৃষককে ৬,০০০ টাকা ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার করেন তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। তাদের কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয় না যে আপনারা কি গতবার তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিলেন, কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিলেন, না বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন। আমাদের কাছে সব ভারতীয়র একই ভাব, সবাই সমান। তাই আজকে যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে ভারতবর্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি, ভারতের সর্বপ্রথম যে রাজনৈতিক দল সেখানে আসছে, আমরা সেটাকে দেখছি, সেটা হচ্ছে ঘর ওয়াপসি। তারা ঘরে ফিরে আসছেন, তারা ভারতবর্ষের একদম মধ্যপ্রান্তে, তারা হার্টল্যান্ডে ফিরে আসছেন। এই কিছুক্ষণে আমি শেষ করতে যাচ্ছি। আমি কারণ বলেইছি আমি বেশি কথা বলতে চাই না। 10 বছরে 10 বার কোনো বাক্য বিনিময় করেননি, কোন রামনগর সম্বন্ধে কোনো বক্তব্য রাখেননি। শুধুমাত্র দীঘায় দোকান দিয়ে কাটমানি তুলে গেলেন। অখিল বাবু, যাদের দোকান নিলেন, দোকান করে দেবেন বলে কাটমানি নিলেন, তারা কোথায় একবার খোঁজ করলেন না? টাকাও নেবেন, ভোটও নেবেন, দুটো তো ভাই হবে না। যখন টাকা নিয়েছেন ভোট নয়, আর ভোট পেলে টাকা নয়। টাকা নিয়েছেন, ওতেই ক্ষান্ত থাকুন, ভোট চেয়ে আর লজ্জা দিবেন না। আর কারণ মিছিলগুলোকে আসতে দিন। আমি সকলের কাছে অনুরোধ করছি, দয়া করে মাঠে ঢুকে যান, মিছিলগুলোকে আসতে দিন। আর মিছিল যারা আসছেন, আপনারা বাদ্যযন্ত্রগুলোকে বন্ধ করে মিছিলগুলো মাঠে নিয়ে চলে আসুন। বন্ধু, আজকে এই রামনগর বিধানসভায় আপনারা দীর্ঘদিন দেখেছেন, আমরা ছোট বয়সে আসতাম বাবার হাত ধরে, মা বাবার সঙ্গে। সেই সময় থেকে দেখতাম দীঘা, পরবর্তীকালে হলো মন্দারমণি, তারপরে হলো তাজপুর। কিন্তু আজ অব্দি সেই দীঘায় লোককে বলা হলো, দীঘায় এলে আমরা ঝালমুড়ি খেতাম, কদবেল মাখা খেতাম, অনেক ঝিনুকের জিনিস কিনে নিয়ে বাড়ি যেতাম। মাদুর শিল্প আপনাদের একটা বড় শিল্প ছিল, তাদের বলা হয়েছিল দোকান করে দেওয়া হবে। কান পাতলে এখন দীঘায় গেলে শোনা যায় দোকান হয়েছে, কিন্তু আপনাদের সেই ব্যবসাটা আর নেই। আর দোকান পেতে গিয়ে এই রামনগর বিধানসভার বিধায়ককে কত করে কাটমানি দিতে হয়েছে সেটা আমার চেয়ে ভালো আপনারা জানেন। আপনারা সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বাস করেন, আপনারা জানেন জোয়ারের সময় যখন জোয়ার আসে, অনেক নুড়ি পাথর আসে, ঝিনুক আসে, তার সঙ্গে বালিও আসে। সেই জন্যে জোয়ারে সবাইকে আমরা নেব, বালি পড়ে থাকবে, নুড়ি পাথর ঝিনুক দিয়ে আগামী দিনে সুন্দরভাবে সরকার গড়ব। এটাই হচ্ছে বিজেপির লক্ষ্য। আমরা তাই এখানে সবাইকে আলিঙ্গন করছি। কিন্তু এইটুকু আজকে নিজেদের প্রশাসকে কারা বসে আছে? আজকে কলকাতা পুলিশ কমিশনার কনস্টেটের লোক, আজকে এডিজি আইন শৃঙ্খলা মমতা ব্যানার্জির প্রশাসনে বসে আছে কনস্টেটের লোক, রাজীব কুমার কনস্টেটের লোক।
কাদেরকে বসিয়ে রেখেছেন? এতদিন ধরে যে চিফ সেক্রেটারি ছিল সে কোন স্টেটের লোক? তাদেরকে তো কই বহিরাগত বলেন না। এই সব ভুল বোঝানো, বাঙালি অবাঙালি এই যে বিভেদ তৈরি করছেন, আর এসব চলবে না। মানুষ বুঝে গেছে তৃণমূলে তো এতদিন বিভেদ ছিল, এইবারে তো বিচ্ছেদ শুরু হয়েছে। বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ হচ্ছে, বিচ্ছেদ। বিভেদের নাটক শেষ, এবার বিচ্ছেদ। আগামী দিন সবাই বুঝে গেছে যে সব লোকেরা, যে সকল নেতারা সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে চায়, বাংলার মানুষের জন্য কাজ করতে চায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে, সেই সব লোকেদের জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি, সর্বভারতীয় পার্টি, বিশেষ সর্বভারতীয় পার্টি, আমাদের তার জন্য দ্বার খোলা আছে। আমাদের এখানে পরিবারতন্ত্র নেই। একজন চা বিক্রেতা থেকে আজকে নরেন্দ্র মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। আজকে মুখ্যমন্ত্রীর মতো ভাইপোকে নিয়ে আসতে হয়নি পরের বার চেয়ারে বসানোর জন্য। পরিবারতন্ত্র শুধু শুধু ভোট, আর ভোট কি করে তুষ্টিকরণের রাজনীতি দিয়ে কি করে ভোট করা যায়। এখন আর উনি দিদি নেই, আগে সকলের দিদি ছিলেন, এখন ভাইপোর শুধু পিসি হয়েছে, আর কারোর দিদি নেই। তুষ্টিকরণের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেছে এই মমতা ব্যানার্জির সরকার। দুর্নীতির রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন মমতা ব্যানার্জির সরকার। আজকে 2018 থেকে সকালে দেখেছি চাল চোর তৃণমূল, চাল চোর তৃণমূল। আগামী দিনের স্লোগান হচ্ছে চাল চোর তৃণমূল, আর নেই দরকার, আর নেই দরকার। এইগুলো জিনিস হয়েছে যবে থেকে তৃণমূল পার্টিটা এত 10 বছর ধরে আজকে এই সব জিনিসগুলো অত্যাচার করেছে। অনেক দেখেছেন কয়লা পাচারে লালা মালা কালা সব ধরা পড়ছে। আগামী দিনে দেখবেন কালীঘাটের ভেতরে অনেকে লুকিয়ে আছে, সব সিবিআই হবে, সব কজন ধরা পড়বে, দোষীদের শাস্তি হবেই হবে, হবেই হবে। এত অত্যাচার মানুষ সহ্য করেছে। একের পর এক বিজেপি কর্মীদেরকে কেস দিয়েছে, প্রায় 100-র বেশি, 126 জন বিজেপি কর্মী আমাদের মারা গেছে। আমাদের এখানে মারা গেছে এই পটাশপুরে। আজকে লোকাপের মধ্যে পিটিয়ে মারা হয়েছে, তাকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। সেখান থেকে এসএসকেএম এ নিয়ে যাওয়া হবে, পরিবারকে পর্যন্ত জানানো হয়নি। আমরা গেছিলাম, আমরা যাচ্ছিলাম তার দেহ নিয়ে, যে কালীঘাট পৌঁছবার কত চাই আপনার লাশ, আর কত চাই, কত লাশ পেলে আপনি হাসবেন, আপনি ভাববেন 2021 সরকার আসবে, একটা সিট জিতবে না, একটাও সিট জিতবে না। যত লাশ ফেলবে তত ভোটে মানুষ এগিয়ে যাবে, ভারতীয় জনতা পার্টি তত তাড়াতাড়ি সরকার তৈরি করবে। আজকে এইভাবে একের পর এক বিজেপি 21-এ নবান্ন দখল করব। আজকে 10 বছরে যেভাবে যেভাবে তারা অত্যাচার করেছে, সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের কথা কেউ ভুলে যায়নি। আমার এলাকায় সিঙ্গুর পরে সিঙ্গুরে কৃষকদের চোখে জল ফেলতে দেখেছি, তারা চোখে জল ফেলছে। কৃষিও হয়নি, শিল্পও হয়নি, নন্দীগ্রাম থেকে আওয়াজ শুরু হয়েছে। নন্দীগ্রামের মানুষও আওয়াজ তুলতে শুরু করেছে যে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম মমতা ব্যানার্জিকে সেই মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসিয়েছিল, সেই সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে মমতা ব্যানার্জিকে সেই মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার থেকে নামাবে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তৈরি হবে। একের পর এক প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের জন্য তারা নতুন আইন নিয়ে এসছে। আজকে সবাই চায়, প্রত্যেকটা বাংলার মানুষ চায় বেকার যুবক যুবতীরা চাকরি পাক, আয়ুষ্মান ভারত আমাদের পশ্চিম বাংলায় আসুক। আজকে কৃষকদের যে সমৃদ্ধি যোজনা 6000 টাকা করে, সেটা আমাদের বাংলার কৃষকরা পাক। धन्यवाद असीमदा। मंच पर उपस्थित जिले के सभापति अनूपदा, लोकप्रिय सांसद, महिला नेत्री
लड़ाकू नेता लॉकेट चटर्जी, तालियां बजाकर लॉकेट जी का स्वागत करें। इस जोन के प्रभारी व पुरुलिया के बहुत ही युवा सांसद, बहुत जुझारू सांसद ज्योतिर्मय सिंह के लिए जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। बंगाल की मीठी भाषा को राज्यसभा में आप सबकी समस्या उठाने वाले बहुत बुद्धिजीवी वरिष्ठ पत्रकार सपन दा के लिए जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। इस विशाल आयोजन के कर्ता धर्ता सव्यसाची दा, जो कि विधाननगर के मेयर भी रहे, जरा तालियां बजाकर इनका भी स्वागत करें। अनुपम मलिक जी हमारे वरिष्ठ नेता, तालियां बजाएं। मलय सिन्हा जी, हमारे तपन महतो जी, पूर्व विधायक, तालियां बजाएं जरा। स्वदेश नायक जी, सोमनाथ जी, तालियां बजती रहना चाहिए अपनी। और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, देवियों और इस विशाल सभा में उपस्थित काथी के सभी नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल रात से कलकत्ता में बारिश हो रही थी। मैंने सव्यसाची दा को बोला कि भाई बारिश हो रही है, हम कलकत्ता से चले तो रास्ते में भी बारिश हो रही थी। मैंने कहा वहां कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। आप देखिए राम नाम और रामनगर का प्रभाव कि रामनगर के 20 किलोमीटर तक बारिश हो रही है, कलकत्ता से लेकर यहां तक, पर रामनगर में एक बूंद पानी नहीं है। ये राम नाम का प्रताप है। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। लॉकेट जी ने बहुत सही कहा, जहां राम है वहां भाजपा है, वहां पदम फूल है। रामनगर का आज शंखनाद ममता जी के नवान की ईंट हिला देगा। रामनगर का ये शंखनाद पश्चिमी बंगाल से चावल चोरों को हटा देगा। बड़ा अच्छा नारा लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चाल चोर सरकार और नई दरकार। मैं बोलूंगा चाल चोर सरकार, आप कहेंगे चाल चोर सरकार, चाल चोर सरकार, चाल चोर सरकार, चाल चोर सरकार। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल आते हैं, गरीबों के लिए निशुल्क चावल देते हैं, तूफान आता है तो दौरा करते हैं, ममता जी को साथ में लेते हैं, हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं, 1000 करोड़ रुपए की मदद करते हैं। वो 1000 करोड़ रुपया कहां जाता है किसी को पता नहीं। ये चाल चोर सरकार तूफान का पैसा भी खा जाती है, गरीबों का पैसा भी खा जाती है। क्या ऐसी सरकार पश्चिमी बंगाल में रहना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछता हूं। पश्चिमी बंगाल ने कांग्रेस की सरकार देखिए ना कांग्रेस की सरकार आप लोगों ने। आपने सीपीएम की सरकार भी देखी ना सीपीएम की सरकार। सीपीएम की सरकार में भी हत्या होती थी, लूटमार होने लग गई। आपने ममता जी को बिठा दिया ये सोचकर कि सोनार बंगला बनेगा। मां, माटी और मानुष का नारा देकर उन्होंने पश्चिमी बंगाल की जनता से आशीर्वाद मांगा था। पश्चिमी बंगाल ने एक बार नहीं 2 बार ममता जी को आशीर्वाद दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर यदि सर्वाधिक महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ की घटना होती है तो क्या ऐसी सरकार पश्चिमी बंगाल में रहना चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूं।
जहां माँ की रक्षा नहीं हो, जहां बहन की रक्षा नहीं हो, जहां बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो, और उस प्रदेश की मुख्यमंत्री यदि महिला हो, तो क्या ऐसी महिला को मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है क्या? माँ के नाम से आई, माटी के नाम से आई, माटी। अरे इस माटी को आजादी दिलाने के लिए हमारे देश के नौजवानों ने, इस प्रदेश के नौजवानों ने भारत माता की जय बोला, तिरंगे को हाथ में लिया, वंदे मातरम बोला, तिरंगे को भगाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे नौजवान, चाहे रास बिहारी बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, सबने अंग्रेजों को भगाने के लिए फांसी के फंदे को चुमा, फिरंगियों की गोली को अपनी छाती पर झेला, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोला, तिरंगा हाथ में लेकर बोला। फिरंगे की गोली उनकी छाती पर आती थी, गोली लगती थी, नौजवान गिरता था, दूसरा नौजवान तिरंगा थाम लेता था और कहता था वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये माटी अगर है तो उन नौजवानों के खून के कारण है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि इस माटी में बांग्लादेश के घुसपैठिए आएंगे, क्या माटी सुरक्षित है बंगाल की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मां सुरक्षित नहीं, माटी सुरक्षित नहीं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीएए कानून बनाया। सीएए कानून बनाकर वो सब हिंदू जो पाकिस्तान से प्रताड़ित हुए, जो बांग्लादेश से प्रताड़ित हुए, जो अफगानिस्तान से प्रताड़ित हुए, हमारे देश के अंदर शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम ये लागू करेंगे और उन सब लोगों को नागरिकता देंगे। पर ममता जी क्या कर रही है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल में आते तो कहते हैं ये बाहरी है। क्या देश के प्रधानमंत्री बाहरी है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? वो इस देश के रक्षक है कि नहीं? वो चाइना की छठी का दूध याद करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? अमित शाह जी यहां पर आते हैं, दीदी कहती कि बाहरी आदमी। अमित शाह जी जिन्होंने धारा 370 हटाई, जिन्होंने आतंकवादियों के छक्के छुड़ाए, क्या वो बाहरी व्यक्ति हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अमित शाह इस देश के गृह मंत्री है, इन्होंने धारा 370 हटाई, क्या वो बाहरी व्यक्ति हैं? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? ममता जी कहती कि ये बाहरी व्यक्ति हैं। अरे ममता जी, रोहिंग्या मुसलमान जो आतंकवादी हैं, उनको आप गले लगाती हैं, वो आपके प्यारे हैं रोहिंग्या मुसलमान। बांग्लादेश के घुसपैठिए जो यहाँ तस्करी करते हैं, फेक करेंसी चलाते हैं, हथियार लाते हैं, नशीले पदार्थ लाते हैं, वो आपके हैं। और अमित शाह जी बाहर के हैं, कैलाश विजयवर्गीय बाहर का है। ममता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका आत्मविश्वास खत्म हो गया। आपने पूरी की पूरी टीएमसी पार्टी को पीके के पास, पेक कंपनी के पास गिरवे रख दिया। आज टीएमसी ममता जी की नहीं है, आज टीएमसी मुकुलदा की नहीं है, आज टीएमसी शुभेंदु अधिकारी की भी नहीं है, वो भी टाटा कर रहा है। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अब टीएमसी में नहीं रह सकता, क्योंकि टीएमसी की बागडोर भाइकों के पास चली गई, बाइकों के पास चली गई। और बाइकों क्या कर रहे हैं? हमारी अभी लॉकेट दीदी ने बताया, गाय की तस्करी का पैसा कहां जाता है? किसके पास जाता है? बाइकों के पास, भाइकों के पास। कोयला चोरी का पैसा किसके पास जाता है? जोर से बताओ। बांग्लादेश में तस्करी का पैसा किसके पास जाता है? ये भाई को अब टीएमसी चला रहा है। क्या ऐसी टीएमसी की सरकार इस प्रदेश में रहना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
टीएमसी अब ममता जी की नहीं है, टीएमसी पुराने नेताओं की किसी की नहीं है। सब टीएमसी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, सब टाटा बाय बाय कर रहे हैं। प्रदेश की जनता भी टाटा बाय बाय कर रही है। ममता जी और भाई को जितना 4 महीने का समय है आपका, और फावड़े से नोट खींच लो, पर उस नोट का करोगे क्या जब सीबीआई छापा मारेगी, जब सीबीआई पकड़ेगी तो वो पैसा कोई काम में नहीं आएगा। जेल में पैसे का कोई उपयोग नहीं है। ये सारे भ्रष्टाचारी लोग, सिंडिकेट लोग, कट मनी खाने वाले लोग, गाय की तस्करी करने वाले लोग, कोयले की तस्करी करने वाले लोग, सबकी जगह नवान नहीं है, जेल है। और आने वाले समय में ये सब सिंडिकेट राज चलाने वाले लोग कहां होना चाहिए? बताइए जोर से। गाय की तस्करी करने वाले लोग कहां होना चाहिए? चावल तस्करी करने वाले लोग कहां होना चाहिए? उनकी जगह जेल में है, नवान में नहीं है। नवान में जगह है तो देशभक्तों की जगह है, नवान में जगह है तो नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ताओं की जगह है, नवान में जगह है तो सोनार बंगला बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जगह है। और इसलिए रामनगर के नागरिक बंधुओं, ये रामनगर का शंखनाद पूरे बंगाल के अंदर एक माइलस्टोन बनेगा, एक मील का पत्थर बनेगा। हमारे सव्यसाचीदा नाराज हो रहे थे, अधिकारियों ने जमीन नहीं दी, जगह नहीं दी सभा के लिए। अरे उनके जमीन और जगह देने से कुछ नहीं होता। पश्चिमी बंगाल की जनता में नरेंद्र मोदी जी के लिए दिल में जगह है। हम दिल तक पहुंच गए हैं, दिल तक। पश्चिमी बंगाल के नागरिकों ने तय कर लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। बनाना है लेकिन बनाना है, बताइए मुझे। दोनों हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, बोलिए भारत माता की। बनाना है ना? चाल चोर सरकार, सिंडिकेट सरकार, चिट फंड सरकार अब दरकार नहीं है। अब यदि दरकार है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आवश्यकता है। माताओं और बहनों को सम्मान प्रदान करेंगे। हम इस प्रदेश में उद्योग लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे। मैं बॉम्बे जाता हूं, बेंगलोर जाता हूं, एयरपोर्ट से उतरता हूं और लोग मुझे पकड़ते हैं, कैलाश जी बंगाल में आप जल्दी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए, हम अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं। बंगाल के नौजवान बेंगलोर में नौकरी कर रहे हैं, बंगाल के नौजवान हैदराबाद में नौकरी कर रहे हैं, बंगाल के नौजवान बंबई में नौकरी कर रहे हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर वहां नौकरी कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ उद्योग नहीं है। ममता जी, आपने इन्वेस्टर मीट के नाम पर 4-4, 5-5 इन्वेस्टर मीट की करोड़ों रुपया खर्च किया, एक भी उद्योग नहीं लगा। ममता जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 10,000 से ज्यादा छोटे मोटे उद्योग खत्म हो गए। आज बेरोजगार नौजवानों की संख्या बंगाल में बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम उद्योग लाएंगे, कारखाने लाएंगे और यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे। आत्मनिर्भर भारत का सपना जो सारे देश के नौजवान देख रहे हैं, बंगाल वंचित है। बंगाल में भी हम आत्मनिर्भर बंगाल बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाकर बनाएंगे। और इसलिए नागरिक बंधुओं, आप सबसे निवेदन है, अब कमर कसना है, अब डरना नहीं है। इस प्रदेश में मां का सम्मान नहीं, इस प्रदेश की माटी खतरे में है। मानुष की बात करूं मैं, मानुष की जान की इस प्रदेश में कोई कीमत है क्या? मेरे पास हमारे एक कार्यकर्ता मदन गुरोही के सुपुत्र दिवेंदु गुरोही यहां पर है, जरा बुलाइए। मदन गुरोही की गलती इतनी है कि वो हमारे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता, ये नौजवान, मासूम नौजवान, इसने अपने पिताजी को खो दिया। इसके पिताजी की हत्या इसलिए की गई कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का काम करना पाप है क्या?
अगर मदन गुरोही की आत्मा को शांति जब मिलेगी जब ममता जी को कुर्सी से उतारकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे 126 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की है भारतीय जनता पार्टी के। क्या आपसे पूछना चाहता हूं, मां सुरक्षित है क्या? माटी सुरक्षित है क्या? मानुष सुरक्षित है क्या? क्या ऐसी सरकार को बने रहने का अधिकार है? और इसलिए आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि इस हत्यारी सरकार को, इस चावल चोर सरकार को, इस सिंडिकेट राज चलाने वाली सरकार को, ये भुआ भतीजे की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। बोलिए मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की। देखिए ये भारत माता की जय हम बोलें तो ये नारा देश की सीमा पर यदि सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इसलिए कि हमारे देश के नौजवान अपना घर, अपना परिवार, अपने पत्नी, अपने बच्चे को छोड़कर देश की सीमा पर खड़े हुए हैं, दुश्मनों की तरफ छाती लड़ा के खड़े हुए हैं हम लोगों की सुरक्षा के लिए। उन तक हमारी आवाज पहुंचना चाहिए। ये विश्वास दिलाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी का भारत, नरेंद्र मोदी जी की जनता पूरी उन सैनिकों के साथ है। और हम आपको वचन दिला देते हैं सैनिक बंधुओं कि पश्चिमी बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जो सीमावर्ती प्रदेश है। यहाँ घुसपैठी आ रहे हैं, यहाँ आतंकवाद आ रहा है, यहाँ पर हथियार आ रहे हैं अवैध, यहाँ पर फेक करेंसी आ रही है। आने वाले 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। घुसपैठियों को रोकेंगे, आतंकवाद को रोकेंगे, एक सोनार बांग्ला बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बोलिए। हिंसा की राजनीति समाप्त करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए मुझे। हत्यारी सरकार को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? बताइए मुझे। चावल चोर सरकार को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? बताइए। तो मेरे साथ नारा लगाइए, चावल चोर सरकार, चावल चोर सरकार, चावल चोर सरकार, सिंडिकेट सरकार, कटमनी सरकार, चिट फंड सरकार, चावल चोर सरकार। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये बालक, इसके साथ पूरी पार्टी खड़ी है। मदन गुरोही का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। यह बलिदान इस सरकार की कुर्सी हिला के रहेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बेटा पूरी पार्टी आपके साथ है, आप चिंता मत करना। देवेंद्र इसका नाम है, इसको आप आशीर्वाद दीजिए और विश्वास दिलाइए एक बार फिर से भारत माता की जय बोल के कि जब तक ममता जी की कुर्सी उखाड़ के नहीं फेंकेंगे जब तक दम नहीं लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।